Hello friends, welcome to the chemistry class. In today's class, we will discuss about the preparation of haloalkanes from alcohols. So there are various methods to prepare haloalkanes by using alcohols. So let us discuss one by one. सबसे पहला मेथड आता है इसमें using HX. Here X means Cl Br I. यहाँ पर हम लोग HF यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि HF बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है and it causes explosion during the reaction. So that's why this method cannot be used to prepare fluoroalkanes. ये तो हो गया एक मेथड. सेकेंड मेथड आता है इसमें by using PX3. Here X is also Cl Br I. PX3 यूज करके भी हेलोवेल्किन बना सकते हैं. थर्ड मेथड आता है इसमें यूजिंग PCl5 as well as SOCl2. SOCl2 is thionyl chloride. PCl5 या SOCl2 में से कोई भी यूज करके कोई भी रिएजेंट हम यूज करते हैं तो एल्कोहल्स जो है वो क्लोरोएल्कीन्स बनाते हैं, दैट इज RC. सो दीज आर द मेथड्स टू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स बाय यूजिंग एल्कोहल्स. अब एक एक करके पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि HX यूज करके किस तरह से हेलोएल्केन बनाते हैं या PX3 यूज करके किस तरह से बनाएंगे या फिर PCl5 और SOCl2 यूज करके कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले आता है यूजिंग HX और इसमें भी सबसे पहले आता है हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोएल्केन्स बाय यूजिंग HCl. So when alcohols reacts with concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl, then this OH is substituted by Cl to form chloroalkane. This mixture is known as the mixture of concentrate HCl and anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent. So what is the function of ZnCl2? Anhydrous ZnCl2 helps in the formation of carbocation. From alcohol, this product, that is chloroalkane, is formed through carbocation. So ZnCl2 helps in the formation of carbocation because of its electron deficient nature, because it is Lewis acid. So therefore, और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2OH. Same, this is concentrate HCl and anhydrous ZnCl2. So OH is substituted by Cl. The product is CH3, CH2, CH2, Cl. This is 1 degree alcohol. Another example, CH3, CHOH, CH3, this is 2 degree alcohol, concentrate HCl and anhydrous ZnCl2 to form this OH is again substituted by Cl, CH3, Cl, CHCl, CH3. But if it is tertiary alcohol, then there is no need to use anhydrous ZnCl2 because you have already studied in the earlier class 11. Tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation and secondary is more stable than primary and primary is more stable than methyl
मिथाइल कार्बोकेटाइन। Here, using tertiary alcohol, tertiary carbocations are formed which are more stable. So there is no need to use anhydrous ZnCl2. एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 whole thrice-COH. This is tertiary butyl alcohol. O1 स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका OH. This is CH3 and CH3. It is directly reacts with concentrated H2HCl to form tertiary butyl chloride CH3CH3CH3Cl. So this is a preparation method of chloroalkane. Now to prepare bromoalkane by using HBr, using HBr. HBr is quite unstable, hence it is prepared at the time of reaction. HBr अनस्टेबल होता है, लेकिन जब भी इसको हमें यूज़ करना होता है उसी टाइम इसको बनाते हैं। उसको बनाने के लिए NaBr या फिर KBr को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं। रिएक्शन कैसे होती है? इट इज NaBr, ये कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करेगा और NaHSO4 बना लेगा और साथ में HBr बना। अब ये HBr जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा जस्ट लाइक HCl, CH3 CH2OH plus HBr to form CH3 CH2Br plus H2। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग HCl को यूज़ करके क्लोरोएल्केन बनाते हैं, ठीक वैसे ही HBr को यूज़ करके हम ब्रोमोएल्केन बनाते हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे है कि HBr को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो जब भी हमें इसको यूज़ करना है उसी टाइम इसको बनाते हैं। बनाने के लिए क्या है, NaBr को या फिर KBr को कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं। इसी तरह से ही अगर मुझे आयोडोएल्केन बनाने हैं तो यूजिंग HI को यूज करके कैसे बनाएंगे। HI भी HBr की तरह क्या होता है, अनस्टेबल होता है और इसको भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि NaBr तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मिक्स कर दें तो HBr बनाएगा, है ना। तो ठीक वैसे ही अगर मैं NaI ले लूँ यहाँ पे या KI ले लूँ और उसको कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट कराऊँ तो उसी मेथड से क्या बन जाएगा, HI। जैसे ये NaHSO4 प्लस HI ये बना लेगा ये। बट यहाँ क्या होता है कि HI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे ही ये रिएक्शन में बनेगा, एज इट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, it immediately reacts with H2SO4 and reduces H2SO4 to SO2। जैसे ही HI बनेगा ये H2SO4 से रिएक्शन कर जाएगा और क्या कर देगा, H2SO4 को रिड्यूस कर देगा और SO2 लिबरेट करेगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसकी वजह से क्या होगा, I2 का लिबरेशन होगा प्लस H2। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे HI बनाना है तो H2SO4 की जगह क्या है, H3PO4 यूज करते हैं। जैसे NaI
plus H3PO4 to get NaH2PO4 plus HI। अब ये HI क्या है, किसी भी एल्कोहल से रिएक्शन कर जाएगा। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, दिस इज NaI in the presence of concentrate H3PO4 तो के CH यहाँ पे आ जाएगा, इस OH की जगह I CH। तो using HX these are the methods to prepare haloalkane। ठीक है, अब सेकंड मेथड पे आ जाते हैं इसमें कि एल्कोहल्स को PX3 से रिएक्ट करा के किस तरह से हेलोएल्केन बनाते हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट आ जाता है यूजिंग PX3 हाउ हेलोएल्केन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग PX3। Here X means also Cl, Br, I। If it is Cl, then it is PCl3. If it is Br, then it is PBr3, phosphorus tribromide. If it is I, then it is PI3, phosphorus triiodide. This is stable, PCl3 is stable, but these are not stable. Means cannot be stored for long time. So therefore they are also prepared at the time of their use। जब भी हमें इनको यूज करना होता है उसी टाइम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, रेड फॉस्फोरस को Br2 से रिएक्ट करा के या रेड फॉस्फोरस को I2 से रिएक्ट करा के, ये मेथड है इसको बनाने के लिए। तो किस तरह से बनेंगे, मैं रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में बता रही हूँ आपको। दिस इज एल्कोहल, एन एग्जाम्पल वी यूज CH3 CH2OH, इसको रिएक्ट कराया PCl3 से। बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे इसके टू गिव दिस OH is substituted by Cl to give 3CH2Cl plus as a side product H3PO3 is formed. What is H3PO3? This is phosphorus acid. But when you are given the reaction, complete the following. No need to write the side product, no need to write the reaction in balanced form. आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना होता है इसमें। ठीक है, जैसे मुझे दिया हुआ है ये एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेनॉल और मैंने इसको रिएक्ट कराया PCl3 से, तो इस OH की जगह क्या आएगा, Cl, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन होगा। सो नो नीड टू राइट द H3PO3 is formed during the reaction। आपको सिर्फ इतना लिख के बताना है कि दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। सिमिलरली अगर मुझे आयोडोएल्केन या ब्रोमोएल्केन बनाना है तो इसी तरह से चलते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी मुझे दिया हुआ है ये एल्कोहल CH3CHOH, दिस इज आइसोप्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको रिएक्ट कराया रेड फॉस्फोरस Br2 से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्रोमोएल्केन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। दिस इज CH3CHBr। ठीक वैसे ही अगर आयोडोएल्केन बनाना है तो मुझे ये कंपाउंड दिया हुआ है OH, इसको रिएक्ट कराया रेड फॉस्फोरस I2, तो इस OH की जगह क्या आएगा, I। तो PX3 यूज करके इस तरह से हेलोएल्केन्स बनाते हैं।
अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट मेथड पर। उसमें क्या है कि यूजिंग PCl5 या फिर SOCl2। सबसे पहले यूजिंग PCl5। व्हाट इज PCl5? दिस इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा एक चीज और, इसमें जैसे हम लोग PCl5 यूज कर रहे हैं, ऐसे ही ब्रोमो एल्कीन बनाने के लिए हम लोग PBr5 यूज कर सकते हैं, PI5 यूज कर सकते हैं? नो, बिकॉज of large size of Br as well as I, these pentahalides does not exist. Right? So they cannot be used. जब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो फिर कैसे यूज करेंगे? PCl5 यूज करके किस तरह से बनाते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं एल्कोहल का, CH3 CH2 CHOH CH3 ब्यूटेन 2 और इसको रिएक्ट कराया PCl5 से। बैलेंस्ड रिएक्शन बता रही हूँ मैं इसमें। ये जो OH है वो Cl से सब्स्टिट्यूट हुआ, CH3 CH2 CHCl CH3 प्लस अब इसमें साइड प्रोडक्ट फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 प्लस HCl, phosphorus oxychloride, it is POCl3 and HCl. These are the side product form. तो ये कंप्लीट बैलेंस्ड फॉर्म में मैंने रिएक्शन बताई है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपको ये रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है कहीं पे भी। यू हैव टू राइट ओनली द मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट आपको लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताएंगे, दिस इज OH PCl5 से रिएक्ट कराया, या फिर मैं यहाँ पर PCl3 भी तो ले सकती हूँ, दोनों का सेम फंक्शन है, राइट? तो ये जो OH होगा वो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया, Cl, ये दिस इज साइक्लो 1 क्लोरो या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, दिस इज द प्रोडक्ट। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लूँगी, ये वाला एग्जाम्पल ले लूँगी, ये इस तरह से, दिस इज फिनॉल, दिस इज फिनोलिक ग्रुप, this is the OH which is directly attached to the benzene ring, hence it cannot be substituted by using PCl5 और PCl3। अगर मुझे क्या करना, मैंने यहाँ पे PCl5 या PCl3 यूज कर लूँ तो यहाँ पे मुझे क्लोरोबेंजीन नहीं मिलेगा। ये फिनोलिक ग्रुप, दिस इज OH group which is directly attached to the benzene ring, so it cannot be substituted by using pentahalide or trihalide of the phosphorus. So reaction cannot occur here. But if it is CH2OH, अब मैंने इस तरह से लगाया है इसको, now it is not phenolic group, it is alcohol because this OH is directly attached to the aliphatic carbon atom. So this OH can be substituted, the product is OH, and that is CH2Cl. This is very important example. ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड पे आ जाते हैं, यूजिंग SOCl2, यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड को यूज करके कैसे बनाते हैं? यूजिंग SOCl2, दिस इज थायोनिल क्लोराइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्कोहल का कोई भी, CH3 CH2OH, it reacts with SOCl2 to form CH3 CH2Cl प्लस साइड प्रोडक्ट इसमें कौन कौन से बनेंगे? एक SO2 गैस रिलीज होगी इसमें और HCl गैस भी रिलीज होगी।
These are the side product formed. So this method, कौन सा मेथड कि अल्कोहल और SOCl2 को यूज करके हम लोग क्लोरोएल्कीन बना सकते हैं. So this method is preferred over other methods to prepare chloroalkenes. क्लोरोएल्कीन बनाने के लिए अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करा करके कराना सबसे बेस्ट मेथड है. Why it is considered as best method और it is preferred over other? इस मेथड को हम लोग प्रीफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हम कभी भी कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो वो मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हमें जो प्रोडक्ट है वो एक तो ज़्यादा प्योरिटी के साथ मिले, ज़्यादा अमाउंट में मिले, ज़्यादा यील्ड मिले, उसकी कन्वीनियंटली उसको रिएक्शन को करा सकते हैं. ईजी हैंडलिंग, उसको बोल सकते हैं ईजी हैंडलिंग होती है रिएक्शन. बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सप्लोजन नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ क्या रीज़न है इस मेथड को यूज़ करने का, प्रेफरेंस क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि इस मेथड में जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलते हैं SO2 एंड HCl, दीज बोथ आर गैसेस. और जैसे ही ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं गैस होने की वजह से मिक्सचर से रिलीज हो जाते थे. एस्केप आउट फ्रॉम द मिक्सचर लीविंग बिहाइंड द प्योर प्रोडक्ट. So this method is preferred. One more example. CH2OH. It is reacted with SOCl2. सेम फंक्शन है इसका भी, जैसे PCl5 काम करता है, हम यहाँ पे PCl5 भी ले सकते हैं और हम यहाँ पे PCl3 भी ले सकते हैं. सबका काम एक जैसा है. यहाँ पे ये बन जाएगा CH2Cl. तो ये सारे मेथड्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सारे मेथड कौन से थे कि हेलोएल्कीन को एल्कोहल्स को यूज करके कैसे बनाते हैं. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.